quality control is concerned. Okay. So, so hopefully this is useful. This is, for example, visible to you. Visible? Yes, sir. Yes, sir, visible. Okay. So once again, have a brief what we did last time, and then continue with this discussion. So control chart that plays an important role in the quality control. So subsequently, the metrology and other things. Okay. So quality, the charts are very much important, and these are commonly used in the industry, as we have seen last time, for the purpose of controlling this your process. Maybe offline, maybe online or real time basis you can control the process. मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे आपका वो बीपी मॉनिटर होता है हॉस्पिटल में, इट्स अ रियल टाइम प्रोसेस बेसिकली, तो उसका भी चार्ट आप बना सकते हो. And same is the case with this any industry where the process is going on, you can measure the things. You can, for example, on the basis of say either it's a variable or either on the basis of, for example, some attribute, and you can consider or qualify the process that is the producing the good quality product or not, and whether these things that should be accepted or not. Okay. So control chart, it's a statistical method basically that plays an important role. So control charts are used to separate out the assignable causes of quality variation. They are used to distinguish between the inherent random variability of process and the variability attributable to assignable causes. They accomplish this through an appropriate choice of control limit calculated from the laws of probability. So we have already seen about this 3 sigma limit basically. So that maximum area is 99.7473 percent, and for the 3 sigma, that is called, that is also called as a plus minus 3 sigma basically, and total come up to the that is, for example, say 6 sigma basically. And the 2 sigma limit is approximately 68%, and this particular sorry, 2 sigma is approximately 95%, and the 1 sigma, that is approximately 68%. Okay, that is the, for example, this 3 sigma limit, and that follows the this distribution, that is normal distribution, and that is the normal curve that is to be considered. So random sample of work in process are taken at random inspected. So how to carry out this particular thing? So this process is called as a randomization in statistics. So we are not going to have the sample as the process is going on. So we are randomly taking the sample in the morning, in the evening, in the, or as per the shift you can say. Data collected are then presented graphically in the chart form, and chart method is an essential part of a quality control system that we have seen. So the control limits on the control charts are then derived from the simple calculation. The control limits are directly related to, for example, say plus minus 3 sigma limit uh, limits, and ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, and become the basis to judge the significance of variation in the process. The sample size chosen must be such that it protect the quality at the minimum cost. So you have to choose the appropriate sample size. ऐसा नहीं होता कि आपने एक sample ले लिया, उसको टेस्ट कर लिया on the various parameters और उसको आपने चार्ट बना दिया. ऐसे नहीं होता. You, for example, the production run is going on, so naturally you have to take the random sampling. Obviously, on the base of time also, on the base of, for example, shift also. So the sampling, the number, that is also important. We'll discuss about the importance of the collecting the number basically, the sample size number basically. So, and the multiple samples which are required for the purpose of say to draw this chart, and to assess the, for example, the causes. These are say for example, responsible for the variation. So sample size chosen must be such that it protect the quality at the minimum cost. If a machine is machine be said to produce work to given dimension, then the two changes in the product quality can occur. The mean size at which the machine is set may shift due to poor due to tool wear, or setting might have moved. तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका सेंट्रल लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. The process variability may change, that is the range in which the size where produced may increase. तो शायद हमने ग्राफ लास्ट टाइम देखा था.
लुक एट दिस वन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपने सेट कर दिया फॉर एग्जांपल अपर लिमिट लोअर लिमिट, बट क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ सम रीजन द टूल वेयर है मान लो, या सम फॉर एग्जांपल सम वेरिएशन इन द मटेरियल, से फॉर एग्जांपल से वेरिएशन इन द मटेरियल डायमेंशन जो आपको मिल रहा है, कुछ फ्लॉज उसमें है, बिकॉज ऑफ दैट उसकी जो मीन साइज है आपको चेंज हो जाएगी। तो अभी मान लो ये इनिशियली आपका मीन साइज फॉर एग्जांपल ये वाला है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है मान लो ये वाला, तो पता चला कि आफ्टर फॉर एग्जांपल से 4-5 आवर्स वो मीन साइज आपका चेंज हो गया। सो दिस विल बी द पॉसिबिलिटी इफेक्ट ऑफ द मीन साइज ड्रिफ्टिंग बोलते हैं इसको। Then either you are having for example change in the process variability, तो प्रोसेस आपका होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है ना, मतलब it should like this particular, that is the within the control limit and the that is close to the mean size basically। लेकिन क्या हुआ कि because of some reason there is a variation in the range in which you are going to produce for example this quantity, अब वो अपर लिमिट से बाहर चला गया, नीचे भी चला गया, पर अब लोअर लिमिट से बाहर। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्रोसेस वेरिएबिलिटी, मतलब जो कुछ भी हो सकता है, डायमेंशंस हो गए मान लो आपके, या कुछ और चीज हो गई लाइक दैट। So whenever the variability in the article is due to the chance factor, the pattern of variability follow the laws of probability, ये तो होता है जनरली। In other words, the behavior of the process is estimated on the basis of behavior of sample taken from the process। It is important that the samples are taken judiciously and at appropriate interval। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जैसे सुबह ले लिया आपने, या 1 घंटे बाद ले लिया, फिर आपने 4 सैंपल निकाल लिए, फिर आपने 1 घंटे बाद 4 निकालने, तो आपको इस तरह सैंपलिंग करनी है और नंबर ऑफ सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं। मतलब एक सैंपल में आपके पास मान लो सैंपल, एक सैंपल मतलब सैंपल विच कंसिस्ट ऑफ से मल्टीपल यूनिट्स बेसिकली। तो जैसे 4 है या 5 है, एक तो नहीं हो सकता बेसिकली, सैंपल में मल्टीपल होता है, कम से कम 3 या 4 होने चाहिए, 5, 6, और ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर केस में। इट शुड बी द नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5। If the sample size is great, then its statistics more closely reflect the parameters of the universe। Generally, distribution of dimensions with the inherent source of variation follow the normal distribution curve, ठीक है ना, ये जो हमने देखा है अभी। As per the central limit theorem of probability, under very general condition, the mean of sample follow the normal distribution regardless of the distribution of population। तो population भले कैसा भी हो आपका मान लो, but वो that follows for example से normal distribution curve जो मैंने आपको size बताया इसके, it's a bell shape basically having that 3 sigma limits। In other words, no matter what is the shape of the distribution of the universe, the distribution of average value x bar of the sample of size 4 or more drawn from the universe will tend toward the normal distribution। इसलिए यूजुअली 4 का साइज रखता है, उसमें 4 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, 4 से कम भी नहीं चाहिए, यूजुअली 4 या 5 होता है। So this very powerful relationship permit the probability statements to be made about a process whose actual population distribution is not known। कई बार ऐसा होता है कि the population distribution या जो भी distribution आपका है that is not known। So उस केस में सबसे आसान तरीका होता है कि 4 सैंपल निकाल ले, तो that definitely follow the normal distribution। The control chart help to easily identify the assignable causes of quality variation and this should be controlled or eliminated economically whenever detected। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई कंट्रोल लिमिट के बाहर आपका मान लो पॉइंट जा रहा है मान लो, so there is a for example some conditions, कितने पॉइंट जा रहे हैं, अगर मान लो एक ही पॉइंट जा रहा है, कुछ माइनर वेरिएशन है, तो उसमें कई बार हम छोड़ देते हैं उसको। लेकिन कई बार मान लो कि मल्टीपल पॉइंट जा रहे हैं, तो that process that should be stopped and the cause of variation that should be identified। So in gathering the data for the preparation of the control chart, the following point should be recommended। तो ये पॉइंट आपको जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे उसमें कंट्रोल चार्ट के लिए, तो you should ensure about the following point। We should be sure that we are measuring the thing we want to measure। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्या मेजर करना है आपको। Measuring equipment and the computing equipment should be operating properly and should be operated properly। दोनों चीजें, वो तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर, जैसे वर्नियर कैलिपर है या मान लो आपका डायल गेज इंडिकेटर है या माइक्रोमीटर है, दैट शुड वर्क प्रॉपर्ली। अगर उसमें एरर होगा तो इट विल गिव द एरर। एंड जो ऑपरेट कर रहा है बंदा, ही शुड आल्सो कन्वर्सेंट विद द ऑपरेशन प्रोसेस।
ऑपरेटर शुड बी प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड एंड फ्री फ्रॉम द बायस। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑपरेटर प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड ट्रेंड होना चाहिए, इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, एंड दे शुड नॉट बी इन सॉर्ट ऑफ फॉर एग्जांपल से बायस। द ट्रांसक्रिप्शन एरर शुड बी अवॉइडेड बाय एडेक्वेट चेकिंग। तो ये आपको जिस तरह का एरर है फॉर एग्जांपल इट शुड बी अवॉइडेड। At least 40 or 100 up to 100 ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन। मतलब जो आपका टोटल साइज होगा मान लो उसमें आपके पास 40 to 100 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सब ग्रुप आल्सो। तो सब ग्रुप किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो आपका सब ग्रुप साइज 4 का है तो टोटल आपको मतलब उसमें 25 आपको सैंपल निकालने होंगे। मतलब एक ग्रुप में आपके 4 ऐसे 25 तो टोटल 100 हो जाएंगे। So look at this one सब ग्रुप साइज। मतलब टोटल सैंपल आपको निकालने 25 उसमें, लेकिन एक सैंपल में 4 आपके पास यूनिट्स होने चाहिए। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो कम से कम 40 होने चाहिए मैक्सिमम आपके पास, मतलब अप टू फॉर एग्जांपल 100। तो ये इसका एक कंसिडरेशन है एज पर एज दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न। इट इज रिकमेंडेड थिंग्स बेसिकली ट्राइड एंड टेस्टेड। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द ग्रुप फॉर द ग्रुप साइज ऑफ 4, ये इंपॉर्टेंट है इसमें देखो। For the group size of 4 or more, the distribution of the group averages is normal without regard to the shape of the parent distribution. In other words, the 3 sigma limits for the averages are valid when the group size is 4 or more, though the parent population is definitely non-normal। हो सकता है कि parent population जो आपके total size उसका जो अगर निकालोगे आप दिन भर में, तो उसमें हो सकता है कि that does not follow the normal distribution, it may follow any other distribution। लेकिन जब सैम्पलिंग आपको करनी है मान लो उस केस में आपको 4 का साइज लेना है बेसिकली। इट इज नॉर्मली रिकमेंडेड द साइज ऑफ 4, ठीक है ना। एंड दैट डेफिनेटली फॉलो फॉर एग्जांपल दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूजिंग बिगर ग्रुप साइज मोर देन 4 इज नॉट आल्सो वेरी डिजायरेबल एज अदरवाइज द पॉइंट विल हैव टू बी प्लॉटेड आफ्टर द लॉन्ग इंटरवल। ये भी एक इसमें एस्पेक्ट है। Whereas with a small group, the points are plotted more frequently and indication of lack of control, thereby caught more quickly। तो look at ये भी एक है कि बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। Approximately 4 points, 4 units we can say। The characteristics of various sample sizes are summarized below। Sample size एक से ज्यादा तो होता ही है, तो 2 होगा। तो sample size 2 में क्या प्रॉब्लम है? The estimate of limit with n is equal to 2 are likely to be erratic and therefore it should not be used unless there is a good engineering reason for it। तो sample size 2 हम recommend नहीं करते। Sample size of 3 though it can be used satisfactorily but its use make calculation tedious and the recurring decimal appears frequently। एक प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की दिक्कत आती है। Sample size of 4 it is a base sample size, it is stable and yet sensitive। तो सैंपल साइज सेंसिटिव भी होना चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए। सैंपल साइज ऑफ 5 इट इज आल्सो वेरी सैटिस्फैक्टरी एंड द बेस्ट टू यूज एज कैलकुलेशन बिकम वेरी इजी पर्टिकुलरली इफ द मेजरमेंट्स आर इन डेसिमल। तो डेसिमल अगर है जहां भी है वहां यू कैन हैव फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर 5। देन हाउएवर रिलेटिवली मोर मेजरमेंट हैव टू बी टेकन टू गेट द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल। तो ये भी प्रॉब्लम इसमें आती है। The sample size of 6 is generally not recommended unless engineering or subgrouping reason call for it। Thus, the 2 samples of 3 are generally considered to be better than the sample of, for example, 6। मतलब सैम्पलिंग में भी आप डबल सैम्पलिंग कर सकते हैं कि 3-3 का एक आपने जैसे मान लो अभी सैंपल निकाल लिया, आपने रीडिंग ले लिया फॉर एग्जांपल, जैसे होता है ना कई बार, फिर 5 या 10 मिनट बाद फिर दोबारा रीडिंग ले लिया लाइक दैट, या सैंपल आपने ड्रॉ कर लिया वहां से like that। The sample size of more than 6 it is not recommended। If n is more than 10 then the range cannot be taken as a efficient measure of dispersion। अगर सैंपल साइज आपका 6 से ज्यादा होगा, जैसे मान लो 10 है फॉर एग्जांपल, तो ये रेंज की एक दिक्कत है इसमें आती है। तो यू विल नॉट गेट फॉर एग्जांपल से द रेंज कैन नॉट बी टेकन एज एफिशिएंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो हो रहा है फॉर एग्जांपल आपका, सो दैट इज नॉट द मतलब रेंज चार्ज जो होता है वो अफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर केस में। So what are the chart that we are going to use for the variables? There are say x bar and r bar chart basically। x bar r chart उसको बोलते हैं बेसिकली। r अलग से भी होता है और कॉम्बिनेशन में भी होता है, मतलब तो दोनों आप उसको यूज करना है आपको। Are widely used control chart for variable data to examine the process stability in the many industries। For example, the hospital patients blood pressure over time, customer call handle time, जैसे होता है ना कॉल सेंटर वाला,
लेंथ ऑफ ए पार्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे पार्ट आपका है, जैसे मान लो है शाफ्ट है फॉर एग्जांपल, है बेरिंग है, तो जैसे भी उसकी थिकनेस होगी, लेंथ होगा। So where we are measuring the variables, dimensions basically. So X bar R chart is used to monitor the process performance of continuous data. तो प्रोसेस दैट जैसे आपका होता है ना, असेंबली लाइन होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, या कोई फॉर एग्जांपल आपका द प्रोसेस लाइक द सीमेंट इंडस्ट्री या पेपर एंड पल्प या फूड इंडस्ट्री आल्सो, जैसे ठीक है, तो वहां आप इसको यूज कर सकते हो। इट इज एक्चुअली टू पॉइंट, it is actually two plots to monitor the process mean and the process variation। तो R chart आपको देता है रेंज का मतलब है कितना वेरिएशन है, और the for this X is that is for example say this particular mean chart basically, the deviation with respect to mean chart you can say mean value over time, and it is example of a statistical process control। This combination chart help to understand the stability of processes and detect the spatial cause variation। तो जब भी आपको चार्ट ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले आर चार्ट करना होता है, उसके बाद एक्स बार करना होता है। तो लुक एट दिस वन, एक्स बार चार्ट, द मीन और एवरेज चेंज इन द प्रोसेस ओवर टाइम फ्रॉम सब ग्रुप्स वैल्यूज। द कंट्रोल लिमिट ऑन द एक्स बार कंसीडर द सैंपल्स मीन एंड द सेंटर। तो मीन और सेंटर दोनों चीजें आप इसमें है। द आर चार्ट, द रेंज ऑफ प्रोसेस ओवर टाइम फ्रॉम सब ग्रुप वैल्यूज। This monitor the spread of the process over a time। तो एक मतलब जैसे आपने टाइम पीरियड ले लिया, एक दिन का होगा, मान लो एक शिफ्ट का होगा, तो दैट मॉनिटर फॉर एग्जांपल से सेंटर एवरेज एंड सेंटरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स बार चार्ट करता है। आर चार्ट दैट इज द वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यूज ऑफ एक्स एंड आर बार चार्ट व्हेन even a very stable process may have some minor variations which cause instability। तो ये हमने देखा है सीएनसी मशीन हो या कोई सी मशीन हो, there is always a possibility of variation because of certain reason। So some of the causes are known to us, some of the causes are not known to us। The X bar R chart will help identify this variation over a time when the data is assumed to be normally distributed। तो सबसे पहले इसमें assumption क्या है आपका, the data is normally distributed। एक होता है आपका एक्स बार आर चार्ट इज फॉर अ ग्रुप साइज ऑफ मोर देन 1। तो एक्स बार आर चार्ट हम किस लिए यूज करते हैं, जिसमें ग्रुप आपका जो साइज है दैट इज मोर देन 1 बेसिकली। जैसे आपने देखा एग्जांपल 2 साइज, 3 साइज, 4, 4 सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर मान लो आपको एक ही सैंपल लेना है, मतलब एज ए सब ग्रुप में एक ही सैंपल है, तो उस केस में देयर इज अनदर चार्ट दैट इज नेम्ड एज IMR चार्ट। The subgroup size is only 1। In that particular case, the subgroup size is only 1। तो वो देखते हैं धीरे धीरे number of say examples, and is generally used when the rationally collecting measurement in the group subgroup size between the 2 and 10 observations। The ये particularly that is for the X and R chart basically। X bar S chart, अब ये standard deviation वाला chart है, वो range वाला था, ये deviation वाला है। So X bar as control chart should be considered when the group size is more than 10। तो जहां X bar R chart आपको ड्रॉ करना है तो उसमें सैंपल साइज 4 आपको मोस्टली रिकमेंडेड होता है। लेकिन मान लो अगर आपका सब ग्रुप साइज ज्यादा है, 6 से ऊपर है या 10 के आसपास है, तो उस केस में फिर वी आर गोइंग टू हैव द चार्ट लाइक से X bar and the standard deviation। S चार्ट का मतलब होता है द स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, बेसिकली सिग्मा होता है बेसिकली वो। When the data collected is continuous, that is the length where is captured, it captures the data in time order basically, ठीक है ना, मतलब जो time order होगा आपका accordingly we can collecting the data। Interpreting the X bar R control chart, to correctly interpret the X bar R chart always examine the R chart first। जैसे मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले आपको R chart draw करना होता है, examine करना होता है। X bar chart control limit derived from the R bar average range values। If the R chart values are out of control, X bar chart control limits are inaccurate। अगर R bar की वैल्यूज मान लो आपकी चार्ट की आउट ऑफ कंट्रोल है फॉर एग्जांपल, तो जो यहाँ आपको X bar चार्ट जो होगा उसमें हमेशा आपको एरर मिलेगा। If the points of R chart are out of control, stop the process, identify the special causes and address the issue, then remove those subgroup from the calculation। तो इसमें मैंने बताया शायद पहले भी कि जो पॉइंट या सबग्रुप आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है उसको बाहर निकाल लो आप उसको,
and then once again draw that particular say R control, R bar control limits basically. Once the R bar chart is in control, review the X bar chart and interpret the point against the control limit. All the points must be मैनेजमेंट प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन लिमिट. जैसे होता है ना कई बार कि आपको इस रेंज में टॉलरेंस जोन चाहिए, मतलब जो आप देते हो, वेयर द कंट्रोल लिमिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द एवरेज एंड द रेंज वैल्यूज ऑफ सब ग्रुप. तो वो डिजाइनर मतलब इंजीनियर डिसाइड करता है कंट्रोल लिमिट्स आपकी. लेकिन जहां कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करने की बात है उस केस में वी आर गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर सब ग्रुप सैंपल बेसिकली, मतलब सब ग्रुप साइज बेसिकली. The process capability studies can, अब इसके बाद आता है process capability, ठीक है ना. मतलब why we are going for this X and R bar chart, because we want to further study the process, whether the process is capable of producing that specification जो आपको दिया हुआ है वो कर सकता है नहीं कर सकता, उसके लिए आपको R X bar और R chart चाहिए. The process capability studies can only be performed after the X bar and R chart values are within the control limits. They are not necessary for the unstable process, ठीक है ना. तो ये process capability अगर आपको further study करना है उस particular case में, whether the process machine or whatever the thing is going on, whether it is capable of producing the requisite specification or not, तो वो process capability से आप study करोगे further, whether the process is stable or not. तो calculation of 3 sigma limit on the control chart of X. अब यहाँ वो 3 सिग्मा लिमिट जैसे मैंने बताया था आपको प्लस माइनस वो कैलकुलेट करनी होती है. तो जहाँ एक ग्रुप है आपका, सब ग्रुप का मान लो 4 का है, तो सबकी अपनी वैल्यू ले ली. किसी के 10.21 है, किसी के 10.2 है, किसी के 10.15 है, किसी के 10 point something है. तो पहले आपको उसका एवरेज निकालना होगा. तो ये एक ग्रुप का एवरेज हो गया. ऐसे 25 ग्रुप होते हैं फॉर एग्जाम्पल, 10 से 25 होते हैं, तो उसका एवरेज यहाँ से निकलेगा. तो ये जो एक्स बार इंडिकेट कर रहा है यहाँ, एक मिनट कहाँ गया, तो यहाँ ये इंडिकेट करता है फॉर एग्जांपल x, फॉर एग्जांपल दिस x डबल बार व्हिच इज द मीन ऑफ ऑल सब ग्रुप सैंपल्स, मतलब जो 100 है टोटल, लेकिन वो आपने ग्रुपिंग में किया हुआ है. तो पहले आपका x बार होगा, पहले सिंपल x बार होगा, फिर सब इसका समेशन ऑफ दिस x बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब ग्रुप, फॉर एग्जांपल से 25 है मान लो, उसके बाद आपको मिलेगा x डबल बार. तो मैं एग्जांपल हम देखेंगे इसमें, और ये उसके प्लस माइनस लिमिट्स है. फॉर एग्जांपल 3 सिग्मा लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये होगी आपके सेंट्रल लाइन एक तरह से, ठीक है. तो उसके प्लस एंड माइनस, तो ये दिस शोस समेशन शोस फॉर सेंट्रल लाइन प्लस फॉर एग्जांपल अपर लिमिट, सेंट्रल लाइन प्लस लोअर वन, ठीक है ना. मतलब ये तो ये ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दैट विल गिव यू फॉर एग्जांपल अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. तो ये कैसे मिलेगा आपको? 3 सिग्मा लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट विल बी 3 सिग्मा x. तो ये कहां से मिलेगा? दैट इज 3 सिग्मा डैश का मतलब होता है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल द सैंपल्स. n का मतलब होता है आपका दैट इज द फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ द सैंपल, बेसिकली कितने नंबर ऑफ सैंपल आपके पास है. एंड इस पर्टिकुलर केस में दैट इज फॉर एग्जांपल इट इज दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3 r बार डिवाइड बाय रूट ऑफ n इनटू d2. तो यहीं से ये निकला हुआ है. दैट इज फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये वैल्यू हम यहां पुट अप करते हैं प्लस माइनस में, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू फॉर एग्जांपल द अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट. लेकिन क्या होता है कि हर बार आपको ये कैलकुलेट करना बड़ा मतलब दैट इज टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली. तो हमने जो कुछ टेबल्स अवेलेबल होते हैं वहां से आपको कुछ वैल्यूज एज ए इनपुट लेना होता है. तो इसका वो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल A2 वैल्यू होती है, ठीक है ना. तो इसमें डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज the upper control limit for this x bar chart is x double bar plus A2 into R. R इंडिकेट करता है आपका रेंज, और यूज ये इसमें गड़बड़ है. ये अपर कंट्रोल लिमिट है, ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये गड़बड़ हो गया. ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, ठीक है. अब x बार इट इज x डबल बार माइनस A2 into R. तो यहां से मिल जाएगा. तो ये जो फैक्टर होता है आपका n लेना है, आपको d2 लेना है, तो डायरेक्टली यू कैन टेक दैट वैल्यू फ्रॉम द टेबल, ठीक है. जैसे मैंने टेबल यहाँ लिखा हुआ है, किसी बुक का है टेबल, है इसमें पब्लिश हुआ है. तो ये दिस टेबल्स आर जनरली अवेलेबल. तो अगर नहीं होगा तो आपको उसका जो वैल्यू होगी A2 की, दैट मे बी गिवन टू यू, एंड यू हैव टू ड्रॉ द कंट्रोल लिमिट्स अकॉर्डिंगली. और उसके बाद आपको चार्ट प्लॉट करना होता है.
ठीक है ना, टू फाइंड आउट वेदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसको देखते हैं आगे। तो ये है वो टेबल जिसमें मैंने बताया ना आपको, तो सब ग्रुप साइज है मान लो 2 है, तो जनरली 4 का होता है फॉर एग्जांपल। सब ग्रुप का साइज आपका 4 है, 5 है, 6 है, जैसे भी है। तो यहाँ आपको लेना है फॉर एग्जांपल A2, यहाँ ये A2 की वैल्यू आपको पुटअप करनी है फॉर द एक्स बार चार्ट, और R होगा तो उस केस में यही चेंज हो जाएगा एज ए फॉर एग्जांपल से D3 एंड D4। सो दीस आर द स्टैटिस्टिकल डेटा बेसिकली। आपको इसमें ये कहां से है कैसे है दैट इज नॉट अब दैट मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटा बिकॉज़ दिस इज द ट्राइड एंड टेस्टेड डेटा बेसिकली। कंट्रोल लिमिट फॉर द स्टैंडर्ड डिवीजन, अगर मान जैसे बताया ना कि अगर मान लो सैंपल साइज आपको मोर देन 10 के आसपास है या 10 के आसपास है, तो उस केस में जो आप पुराना चार्ट आप जो यूज कर रहे हो वो यूजफुल नहीं होगा, तो उसमें आपको यू हैव टू यूज फॉर एग्जांपल द एक्स बार दिस पर्टिकुलर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट अलोंग विद फॉर एग्जांपल दिस एक्स चार्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट में क्या करना होगा, ये सिग्मा इंडिकेट फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दैट पर्टिकुलर सैंपल साइज, और ये आपका जो लिमिट्स है प्लस माइनस दैट इज फॉर एग्जांपल सिग्मा ऑफ सिग्मा, मतलब वो वैल्यू फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आपको पुट अप करनी है एज इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट एज ए B3 एंड B4। तो इसका भी यहाँ दिया होगा, ठीक है ना, ये रहा B3 एंड, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट बोलते हैं, एस बोलते हैं, सिग्मा लिखते हैं। B3 एंड B4 यहाँ से मिल जाएगा, तो ये कंट्रोल लिमिट यहाँ से आ जाएगी, वहां से आपको चार्ट को ड्रॉ करना है बेसिकली। एंड कंट्रोल लिमिट फॉर द R चार्ट, तो ये रेंज चार्ट जैसे मैंने बताया आपको, R बार आपको निकालना है, D4 इज द वैल्यू फॉर द अपर कंट्रोल लिमिट एंड D3 इज द वैल्यू फॉर द लोअर कंट्रोल लिमिट। दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, तो ये टेबल से आपको लेनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम द वैल्यूज आर गिवन टू यू फॉर एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन होगी, लेकिन आपको चार्ट बनाना होता है उसमें, ठीक है। So these are the, for example, the formulas for the control chart, control limit based on the past data, जिसमें कोई standard given नहीं है, ठीक है ना। तो most of the time we are using this kind of data, जिसमें कि for example this is x bar using R, ये आपके limits है for example, x bar using for example S। अगर मान लो range नहीं पता आपको या sample size बड़ा है उस particular case में, आप क्या करोगे, you can make use of for example this particular S that indicates the standard deviation, ठीक है। R की लिमिट से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर वन, और S चार्ट आपको अलग से बनाना है, तो मैंने अभी बताया आपको दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट दैट इज B3 एंड B4। अब ये जब कब की बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड्स आर नॉट गिवन, मतलब ये गिवन नहीं होते, लेकिन अगर स्टैंडर्ड गिवन है, मान लो कोई स्पेसिफिकेशन आपको गिवन है, तो उस केस में आपको फिर इस तरह का वो चार्ट, मतलब यही सेम चार्ट होता है बट विद गिवन स्टैंडर्ड होता है। तो यही एक्स बार चार्ट हो जाएगा, आर चार्ट हो जाएगा और एस चार्ट हो जाएगा, उसमें लिमिट चेंज हो जाएगी ये सारे, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्स बार चार्ट होगा दैट इज म्यू प्लस प्लस माइनस, म्यू का मतलब मीन वैल्यू प्लस माइनस a इनटू सिग्मा, सिग्मा इंडिकेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हियर वी आर फोकसिंग ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। आर चार्ट हो जाएगा आपका D2 इनटू सिग्मा, D1 इनटू सिग्मा, और एस चार्ट हो जाएगा आपका B6 इनटू सिग्मा एंड B5 इनटू दिस पर्टिकुलर सिग्मा। इसकी टेबल में शायद ये वैल्यूज नहीं है, इसकी अलग टेबल होगी, चलिए देखते हैं जैसे जैसे ये वैल्यूज होती है अकॉर्डिंगली वी विल सी, वैल्यूज मैं दे दूंगा आपको। So what are the point that is to be considered as far as this variable chart is concerned, that is the x bar R chart or x bar sigma chart basically. So to control the quality, that is the size of the chart, the size of the chart should be handy one. The chart should be as neat as possible. There should be provision for accommodating additional future point on the chart. The chart should be labeled properly and sufficiently. When it becomes necessary to draw the revised control chart limit on the basis of additional data, this should not be drawn over the original limit, but after this, मतलब उसी पे नहीं करना है आपको, after this plotted point should be quite legible. Average lines are drawn by solid and control limits by dotted. तो ये आपको एक चार्ट बनाने की गाइडलाइंस होती है, किस तरह से चार्ट आपको बनाना है। There should be minimum number of background lines on the graph paper selected for drawing the control charts. Such charts are often plotted on the rectangular or cross section paper. तो जो आपका graph paper होता है जनरली उसमें हम ड्रॉ करते हैं। Necessary steps in connection to the control chart, तो क्या क्या है, मतलब आपको चार्ट, बस पहले आपको डिसीजन प्रिपरेटरी टू कंट्रोल चार्ट, तो क्या आपको करना है वो आपको पता होना चाहिए।
starting the control chart, तो उसके लिए आपको you have to, for example, gather the data, you have to measure it, you have to, for example, have the specific sample size and so on. Then उसके बाद आपको चार्ट के स्टार्टिंग कंट्रोल चार्ट स्टार्ट करने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल वो आपको एंश्योर करनी होगी. उसके बाद यू हैव टू डिटरमाइन द, जैसे इनिशियली आपको सेंड उसका एवरेज वैल्यू निकालनी होगी. Determine a control limit by using these equations, basically drawing the preliminary conclusion from the chart. तो initially आपको पता लग जाता है whether the process is in control or not. तो accordingly आपको chart draw करना है. Continue the use of chart. तो you can draw some preliminary conclusion after drawing that particular chart, and अगर chart satisfactory है, process stable है, तो you can continue using that chart for the further control, basically. So, or to establish standard control. After control chart have been established, then all point will fall within the upper and the lower control limits as long as the process is in control. तो ये आपका initially आपको पता चल जाता है. Lack of control indicated by the following four condition. Lack of control कहाँ से पता लगेगा? Occurrence of any one of this condition is indication of presence of assignable cause which has to be investigated and rectified. तो वहां से मतलब अब चार्ट आपको बता देता है कंट्रोल लिमिट के बाहर है अंदर है, तो क्या गाइडलाइंस उसकी है. अब पॉइंट फॉलिंग आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट लाइन, ठीक है ना. तो कोई एक पॉइंट होगा दैट इज आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर वन. नंबर 2, द रन ऑफ मोर देन 8 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द कंट्रोल लाइन. कई बार क्या होता है कि अपर लिमिट और मतलब मीन वैल्यू और अपर लिमिट, मीन वैल्यू और लोअर लिमिट, वो चार्ट आपका मतलब जो पॉइंट्स है आइदर साइड फॉलो होता है. अगर ये मान लो there is a 8 points for example on the same side, that means there is some problem, that means something is causing that point to lie on the same side. The trend with at least 7 point, एक मतलब 7 point मान लो है आपके एक साथ, मतलब जैसे increasing trend है या decreasing trend है वो पता लग जाता है. So that means the process is in control, but at the same time there is the process shows, for example, some sort of a trend upper or lower. 13 out of 15 points falling falling on the same side of the control line. अब ये होता है कि 15 में से 13 पॉइंट आपके एक ही साइड में है. तो these are the, for example, the different guidelines. It has also been observed that even the best manufacturing process, occasional error constitute assignable causes of variation, but they may not constitute a basis for action. ठीक है ना. तो it has been observed that even in the best manufacturing process, occasional error constitutes assignable cause of variation, but they may not constitute a basis for action. तो कई बार minor variation होता है basically. Therefore, sometimes if only 1 out of 35 or 2 out of say 100 point falls out of the control limit, the process is considered to be the under, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल. अब नॉर्मली जैसे सीएनसी मशीन है तो इसमें ये दिक्कत मतलब ये हो सकता है कि आपका एक ही पॉइंट मान लो कहीं वेरिएशन के बाहर जा रहा है या 35 में से या 100 में से 2 जा रहा है, तो यू कैन स्टिल कंसीडर दैट, मतलब उसमें आपको प्रोसेस को स्टॉप करके दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कंक्लूड दैट द प्रोसेस इज इन कंट्रोल. तो ये हो गया आपका कंट्रोल चार्ट फॉर द वेरिएबल. ये होता है आपका दूसरे होते हैं एट्रीब्यूट में द फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट. बेसिकली दिस आर द चार्ट अंडर द एट्रीब्यूट्स. बेसिकली जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक आपने मार्केट में आप कपड़ा लेने गए तो कपड़े में पता चला कि उसमें होल है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे. या जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फॉर एग्जांपल उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे होता है ना कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, बिल्डिंग डिफेक्ट होते हैं जैसे, तो कुछ डिफेक्ट उसमें आपको दिख रहा है तो एक्चुअली दैट पार्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. बट लेकिन आपको इसमें पता करना होता है कि आपने 100 पार्ट मैन्युफैक्चर किए तो कितने पार्ट में डिफेक्ट आ रहा है. तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ए फ्रैक्शन डिफेक्ट. जैसे मान लो आपने सैंपल साइज ले लिया 10 का, 10 में से 2 पार्ट आपके मान लो खराब है, तो यू कैन से दैट the 2 parts these are not as per the recommendation. तो उसका अगर फ्रैक्शन डिफेक्ट अगर आपको निकालना है तो इट इज फॉर एग्जांपल 2/10, मतलब वो रफली 20% होगा. अगर सैंपल साइज बड़ा है या सब ग्रुप आपके पास 4 का है और टोटल आपके सब ग्रुप 25 है, हर ग्रुप में आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो,
तो उसमें फिर आप 100 में से बता सकते हो कि 100 में से आपके टोटल इसमें जो मैन्युफैक्चर हो रहा है 20 या 10 या जितने भी मान लो, सो दैट इंडिकेट फॉर एग्जांपल द डिफेक्टिव दैट इज कॉल्ड एज ए फ्रैक्शन डिफेक्टिव। तो उसके लिए अब इसमें जो लॉट, इसमें व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन डिफेक्टिव और द चार्ट्स आर कॉल्ड एज एट्रिब्यूट चार्ट, क्योंकि यहाँ हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर एग्जांपल सर we are accepting or rejecting the lot on the basis of that that particular lot is for example having a defective, मतलब उसमें नंबर डिफेक्टिव या फ्रैक्शन डिफेक्टिव हम बात करते हैं, तो इट्स एक्यूरेट बेसिकली कि वो सैंपल साइज है, मान लो अगर 4 डिफेक्टिव तो एक्सेप्ट कर लेंगे, 4 से कम है तो नहीं करेंगे, ज्यादा है तो नहीं करेंगे। सो वी आर टेकिंग सर्टेन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो यहाँ ये कंसेप्शन आपको यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शन डिफेक्टिव। So fraction defective chart, also known as the P chart, or the P chart is a statistical tool that shows the percentage defective item in the process. It is used to monitor and control the quality of the process. The chart calculates the fraction defective P for each sample. The average fraction defect sample का मतलब है एक sample में कई सारे units होते हैं, ठीक है, 4 का sample होगा, 10 का होगा, like that. The average fraction defective that is called as P bar is calculated and plotted as central line on the chart. The control limits are calculated. The points on the chart are computed on the control limit to determine if the process is in control or not. तो इस फ्रैक्शन डिफेक्टिव से पता लगा, अगेन वही तो चीज है कि प्रोसेस को कंट्रोल करना है आपको, एंड कितने फ्रैक्शन डिफेक्टिव आपको प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोसेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अनदर काइंड ऑफ चार्ट्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूट चार्ट। तो यूज अ फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट when observation can be categorized as yes or no, good or bad, or pass or fail, तो उस केस में आप उसमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट यूज करेंगे। when the characteristic cannot be quantified such as the presence of hole in a cloth, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, जैसे मार्केट में जाते हो ना शर्ट खरीदने, तो 4 शर्ट देख लिया आपने, उसमें से आपको पसंद आ गया लेकिन उस शर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कहोगे इस पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसे 100 शर्ट खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, उसमें सैम्पलिंग करोगे, हालांकि वो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग अलग पार्ट होता है, लेकिन उसमें सैम्पलिंग आप करोगे, तो मान लो कि अगर रैंडमली आप उसमें से कुछ सैंपल निकालोगे और चेक करोगे, अगर आपको लगता है कि उसमें से 4 सैंपल खराब है, तो आप उस लॉट को रिजेक्ट कर दोगे, ये 4 से मान लो कम है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। So that particular, तो ये quantification वैसे नहीं होता, मतलब we are simply looking at the for example the acceptance characteristics basically as far as the part is concerned. The symbols used, क्या क्या symbol हम use करते हैं, इसमें n होता है, for example a number of units in a subgroup, k होता है the number of subgroup in a study period, तो जैसे n का मतलब 4 हो गया, k का मतलब 25 जैसे भी होता है, NP number of defect unit found in a subgroup, तो ये हो गया NP, वो NP चार्ट भी होते हैं इसमें, the fraction defective in a subgroup, P is the fraction defective in the subgroup, control chart for the fraction defective P control chart limits, तो कैसे कैलकुलेट करना है, according to statistics the control limits for the control chart are kept as P bar मतलब वो fraction defective वाला हो गया, plus 3 root of this P bar into bracket 1 minus P bar divided by n, तो P क्या हो गया आपका मीन फ्रैक्शन डिफेक्टिव, n क्या हो गया आपका सैंपल साइज, एक सैंपल में कितने हैं, जैसे 4 है 6 जैसे भी है। तो देयर इज अनदर वे टू नो अबाउट फॉर एग्जांपल परसेंटेज डिफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आता है यही चार्ट आपका जो है एट्रिब्यूट चार्ट, सी ऐसे सी चार्ट होता है, जैसे P चार्ट है, दिस आर ऑल एट्रिब्यूट चार्ट, दिस आर कॉल्ड एज एट्रिब्यूट चार्ट, P chart, C chart, U chart, NP chart. C chart is also known as a control chart for defects, counting of number of defect. अब इसमें क्या करें हम लोग, number of defect जैसे होता है ना, एक आपका फॉर एग्जांपल कंपोनेंट है, उसमें मल्टीपल डिफेक्ट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो इसमें हम नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने पार्ट में, जैसे कास्टिंग आपने अपने कास्ट कर लिया तो नंबर ऑफ डिफेक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें, like a C chart. So it is generally used to monitor the number of defect in a constant size unit. Like casting आप बना रहे हो उसमें कितने डिफेक्ट आ रहे हैं उस तरह से, ठीक है ना।
There may be a single type of defect or the several different types, but the C tracks the total number of defects in each unit and it assumes the underlying data approximate the Poisson's ratio. तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एज्यूम करते हैं दैट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली a unit may be a single item or and or a specified section of atom, for example the scratches on the plated metal, number of insufficient soldering in a printed circuit board. तो ये आपका है जैसे स्क्रैच होते हैं ना, ऐसे होता है मान लो मोबाइल पे स्क्रीन पे स्क्रैच होता है, एक स्क्रैच है, दो स्क्रैच है, चार स्क्रैच है. सोल्डरिंग यूनिट जो आप सोल्डरिंग करते हो, एक खराब है, दो खराब है, तीन खराब, हालांकि उसे सोल्डरिंग है लेकिन चार जगह खराब है, ठीक है, लाइक दैट. C charts takes into account the number of defects in each defective unit or in a given sample, while P chart analyze the proportion of non-conforming or defective atom. While हाँ P chart में क्या होता है, C chart में डिफरेंस क्या है? तो P इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट की बात करते हैं, P में हम we are simply considering the fraction defective basically. C chart, the number of defect is plotted on the y-axis and the number of unit on the x-axis. The central line for the C chart is the C chart, that is called as C bar, is the total number of defect divided by number of samples. So C bar is nothing but the total number of defect divided by number of samples. The C chart is one of the quality control chart used to track the number of defect in a product of constant size, while the U chart is used for the varying sizes. जैसे एक ही साइज आपका मतलब कास्टिंग है या वेल्डिंग है या मान लो शर्ट है फॉर एग्जांपल, यू चार्ट में अलग अलग हो सकते हैं. जैसे शर्ट होता है मान लो 30 का शर्ट है साइज का, 40 के साइज का है, 50 का है, तो उसमें वेरिंग साइजेस में भी आप उसको कर सकते हो. तो दैट फॉर दैट पर्पस वी हैव फॉर एग्जांपल से यू चार्ट. A C chart is used to determine if the process is stable, predictable and also monitor the effects of before and after process improvement. तो ये तो दोनों में होता है, हालांकि आपको दोबारा मतलब मल्टीपल टाइम्स वो चार्ट बनाने होते हैं टू फाइंड आउट वेदर प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट. C chart is especially used when there is a high opportunities for defect in the subgroup but the actual number of defect is less. The C chart requires that each subgroup sample size be the same and compute a control limit based on the Poisson's distribution. C chart control limits are, अब ये यहाँ दिया हुआ है, लगे मैंने पहले बताया आपको, number of defects in all unit inspected and total number of the unit inspected. So C chart का वो C bar बन जाएगा, that is the average value. Upper control limit होती है उसके, for example say U C bar plus 3 times of under root of C bar, and lower control limit that is plus minus, मतलब same thing. U chart जैसे भी बताया मैंने आपको, U chart is a quality control tool that tracks the average number of defect per unit of the product, which is also known as a control unit chart or defect per unit chart. U chart is a type of control chart that monitors process by measuring the subgroup at the regular interval. The chart shows how number of defect changes over a time. तो ये भी हो सकता है कि पहले मान लो एक डिफेक्ट था, फिर दो हो गए, फिर चार हो गए, या फिर हो सकता है कम भी हो गए. So the y-axis of the chart shows the number of defect on a unit or a lot. Central line of the chart represents the average number of defect per unit. U chart is used when measuring the number of defects per unit. एक यूनिट में कितने हैं, बट वेरिएबल होते हैं मान लो उसमें, ठीक है ना, देयर इज वेरिएशन. It is useful when the sample size is greater than 1. U chart is scale version of C chart. मतलब there is no much distinction basically, but it shows the average number of defect instead of say total number. So a P chart is used when measuring the number of defective atom in the group. Control limits for उसमें a P chart is used when the measuring number of defective atoms in the group. मतलब fraction defect की बात कर रहे हैं. The control limit for the U chart, again the same thing, you have to find it, for example average value for this U की value कहाँ से मिलेगी, total number of defects divided by number of inspected items. इसमें U ये आपका lower limit हो गया, नहीं एक मिनट, ये शायद इसमें गड़बड़ है.
ये अपर लिमिट होगा, ये लोअर लिमिट होगा, माइनस है ना, हाँ ठीक है, इस तरह से। सो एवरेज वैल्यू एंड नंबर ऑफ पीसेस, सैंपल साइज यू कैन से। इसके बाद एक एनपी चार्ट भी होता है, ठीक है। And NP chart or attribute chart is quality control chart that monitor the number of defective item in a constant sample size over time. ये जैसे मैंने पहले बताया आपको, फ्रैक्शन डिफेक्टिव हो गया, और उसको मतलब इसको आप बोल सकते हो इट इज जस्ट लाइक अ सी चार्ट बेसिकली, हालांकि कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। It is used to identify the variation that may indicate the change in the process. Tracking defects, monitor the number of defect in a defective item in the process. Assessing the process stability helps organization assess stability of the process. Making the data-driven decision helps organizations make data-driven decision to improve the quality. Use the processes that produces a large number of items. Use when the sample size is the same in each monitored section of the process. ये भी होता है इसमें। सैंपल साइज वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, कहीं मतलब 4 है कि 5 ऐसे नहीं, तो कांस्टेंट होती है। NP chart is also known as the control chart for the defective, D chart बोलते हैं sometimes. It generally monitor the number of non-conforming or defective item in the manufacturing process. It uses binomial distribution to measure the number of defective or non-conforming units in a sample, and NP chart is very similar to the T chart. NP chart plot number of items while the T chart plot the proportion of defective item. In an NP chart, the number of defective is plotted on y-axis and the number of sample on the x-axis. The central line of the NP chart is NP bar is the total number of defective or non-conforming units divided by number of these lots. So you just like that particular one. ये होता है आपका NP bar, that is equal to, for example, say total number of defective divided by number of lots sampled. NP control chart, NP plus 3 times root of NP minus 1 minus P. सेंट्रल लाइन होगी इसके NP बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट ये आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना। इट इज लाइक दैट। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट, क्या क्या करना है, कंटिन्यूस डेटा है मान लो आपके पास आ गया, ठीक है ना। सैंपल ग्रुप साइज N1 है मान लो, तो आप यूज करोगे फॉर एग्जांपल से दिस इज द चार्ट बेसिकली, एक्स जिसको बोलते हैं IMR चार्ट बोलते हैं। एक्स और आर बार चार्ट यूज करोगे जब सैंपल आपका 2 से 9 के बीच में, जैसे मैंने बताया ना 4 एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू होती है, 10 से ऊपर अगर है मान लो तो यू कैन गो फॉर दिस एक्स बार एस चार्ट। डिस्क्रीट डेटा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें डिफेक्टिव, सैंपल साइज, ठीक है ना। वेरिएबल कांस्टेंट दोनों में, डिफेक्टिव में। वेरिएबल मान लो है तो इट इज फॉर एग्जांपल यू चार्ट, कांस्टेंट है तो सी चार्ट, देन सैंपल डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव में इसमें यहाँ वेरिएबल सैंपल साइज और पी चार्ट है मान लो, कांस्टेंट है तो एनपी चार्ट यूज करेंगे। So this is the guideline for this particular how to select the control chart for the process control, ठीक है ना। So this is all about this control chart। इसके जो क्वेश्चंस है कल देखेंगे, तो ये मैं आपको इसका ये दे देता हूँ। जैसे डेटा आपके पास है फॉर एग्जांपल, जैसे ये डेटा है, तो यहाँ नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास फॉर एग्जांपल 10 सैंपल है, और एक सैंपल में आपके एक सैंपल जो सब ग्रुप जिसको बोलते हैं, मतलब सैंपल साइज कितना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल आपके पास 10 है, लेकिन सब ग्रुप सैंपल का साइज कितना है, दैट इज ऑफ 5, मतलब एक सैंपल में 5 है। जैसे मान लो आपने डायमीटर मेजर किया किसी बार का, तो एक बार आपका होगा 12.62 मिला, फिर 60 मिला, फिर 62, 61, 65, तो ये एक हो गया। अब ये जैसे है ना सैंपलिंग हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है सुबह 8 से 9 के बीच में पहला सैंपल ले लिया, उसके बाद 9 से 10 के बीच में दूसरा ले लिया, एंड सो ऑन। तो वी आर कलेक्टिंग द सैंपल ऑन दैट बेसिस। तो एंटायर डे में हमने सैंपल मान लो कलेक्ट किया। अब ये इसमें आपको डिसाइड करना है कि वेदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और नॉट। तो उसके लिए आपको वेरिएबल, ये मतलब दिस इज फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ ए वेरिएबल चार्ट बेसिकली। तो यहाँ ये आपने साइज मेजर किया है, तो आपका एक्स बार चार्ट या एंड आर बार चार्ट आपको इसमें बनाना होगा पहले, ठीक है। तो पहले आपको सिंगल यूनिट ये जो आपका ये सब ग्रुप है, इसका आपको फाइंड आउट करना होगा फॉर एग्जांपल से एवरेज वैल्यू। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी समेशन ऑफ ऑल दिस डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर,
कितने आए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 हो गए। अब इसमें रेंज आपको निकालना होगा, तो रेंज का मैक्सिमम साइज कितना है इसमें मिल रहा है आपको 12.65, और सबसे कम कितना है फॉर एग्जांपल से 12.60। तो इसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव यू फॉर एग्जांपल से रेंज फॉर द फर्स्ट सैंपल। ऐसे सारे सैंपल की रेंज आपको निकालनी है फॉर दिस, और उसके बाद एवरेज रेंज निकालना होता है। उसके बाद इसका सब ये हो गया आपका सिंगल का एवरेज, सिंगल का एवरेज ये होगा आपका, मान लो एवरेज आप है एंटायर फॉर एग्जांपल दिस लॉट बेसिकली, जैसे लॉट मतलब नंबर ऑफ सैंपल बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम आर बार के टर्म में लिखते, सिंपली इसको आर ही लिखते हैं हमेशा, आ गया वो, इसको लिखते सिंपली आर, ठीक है ना, कैपिटल आर के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। वो करना है एक्स बार के लिए, पहले इसका एक्स बार निकलेगा फॉर एग्जांपल, एक्स बार इसका, एक्स बार इसका, और समेशन ऑफ फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर एक्स बार। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, कितने आपके पास फॉर एग्जांपल ये टोटल आपके है समेशन ऑफ एक्स बार मतलब कितना है, इसका टोटल जो भी 10 होंगे डिवाइड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल से 10, मतलब 10 का मतलब 10 हो गए। तो वहां से आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वहां से मिलेगा आपको एक्स डबल बार, फिर कंट्रोल लिमिट होगी तो एक्स डबल बार मीन वैल्यू होगी, तो फिर वहां यूज करना आपको कांस्टेंट दैट इज ए आर एंड ऑल दैट, तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये इसका ये है जो इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। तो हमारा पहला काम है, वी सिंपली वांट टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज कैलकुलेटिंग द कंट्रोल लिमिट्स एंड drawing the chart on the plain paper basically, मतलब graph paper, and then drawing the primary conclusion, preliminary conclusion on the basis of that particular say variation of say this point, whether the points are falling outside the control limit or inside the control limit or one side or either side basically, okay। discard, चलिए आज के लिए इतना ही। So only 48 students are there as far as this time 358 is concerned। मैं लिख देता हूँ 48, मतलब मैं छोड़ के हो गया 47, only 47 present। आज 47 को ही अटेंडेंस मिलेगी, 47 से अगर कोई ज्यादा हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सर मैंने मैसेज में नहीं लिखा था, मैं 3:15 से ज्वाइन हूँ, बट मैसेज में लिखना भूल गया। क्या सर मैंने मैसेज में प्रेजेंट नहीं लिखा था। तो यहाँ रुकना भी तो है, इसका मतलब भाग थोड़ी जाना है आपको। सर मैं रुका हूँ तब से, बट वो लिखना भूल गया था, जस्ट चलो मेरे को रिमाइंड हुआ। करते अभी करते, रुक जाओ। ओके so I am going to give the attendance to 47 student as indicated over here। मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ and then I will verify it later on, ठीक है। कॉपी और ये हो गया पेस्ट, तो ये हो जाएगा
So this is the attendance और क्या था MEC 404 डेट आज की है 7/2/25। ठीक है, 3 से 4 PM की हमारी क्लास थी, उसकी अटेंडेंस है, ये मैंने सेव कर लिया। सात 2/25। ओके, तो मैं तो कर रहा हूँ। पूर्वी, Present, sir. प्रियांशु, Priyanshu is not there. Aryan, Present, sir. then Harsh Shukla, Shukla नहीं है। सोनाक्षी, Present, sir. Sir, Harsh Shukla present. चलिए सोनाक्षी हो गई। ध्रुव सिंधु, Present, sir. रवि कुशवाहा, Present, sir. Present, हर्षवर्धन sir. और Present, sir. करण यादव, Present, sir. अनिकेत जामवाल, Present, sir. हर्ष पुरवाल, Present, sir. अग्रिम अग्रवाल, Present, sir. कणव सिंह, सैयद, दीपक, Present, sir. हिमांशु, ऋत्विक, Present, sir. साहिल, अभिनव, Present, sir. उसके बाद समर्थ जैन, Present, sir. याशिका, खुशी, Present, sir. उदित पाठक, Present, sir. आर्यन सोलंकी, Present, sir. अनीश वर्मा, Present, sir. माणिक भूषण, Present, sir. सत्यम परिदा, Present, sir. आयुष यादव, Present, sir. अनिर्बन, Present, sir. आदित्य सेन, Present, sir. अद्रिशिखर डेका, Present, sir. आस्था नहीं है, विशाल 29, अंजलि कुमारी, Present, sir. तनेश, Present, sir. सोनिया, Present, sir. विशाल 37, Present, sir. हिमांशु, Present, sir. सुमित आनंद, Present, sir. वैश माहेश्वरी, प्रत्युष, Present, sir. Pratyush present. निखिल, Present, sir. अनन्या, कुंदन नहीं है, विनय, Present, sir. वरुण, Present, sir. हर्ष, Present, sir. ऋषु, Present, sir. निशार, Present, sir. ऋषभ जैन, Present, sir. प्रिंस राणा, Yes, sir. गौरव, Present, sir. सुशांत, Present, sir. शिवम रजक, Present. अभिनव, Sir, present. आर्यन, Present, sir. भव्य, Present, sir. यश, प्रथम, Present, sir. Prasam Malik. अनिमेश, Present, sir. किरीट, Present, sir. तुषार, यश शर्मा एब्सेंट है। अच्छा, पंकज नहीं है, Tushar present. एंड ध्रुव कुमार, Present, sir. ठीक है। सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई सर। So 4072. So 4072 Tushar present. अरे टोटल 42, 47 ही प्रेजेंट है, 52 हो रहा है, मैच नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो सकता। So चलिए, okay. 4072 Tushar. You can leave now. Sir, 4073 भी present sir.